Hello everyone, this is Minu Pargai. So today I'm here to explain something really very important about mental illness. So firstly, I'm just going to take you through few slides, okay, which will help you to understand about mental illness. So here I go. Mental illness. It's a mental illness is a condition that affects a person's thinking, feeling, behavior, or mood. Then if I come to the types of mental illness, then first comes anxiety disorders. It is excessive fear or the worry. Then second comes the clinical depression, a mental health disorder characterized by persistently depressed mood or loss of interest in activities. Then third comes obsessive compulsive disorder, which is also called as OCD. It is an anxiety disorder in which people have recurring unwanted thoughts, ideas, or sensations that makes them feel driven to do something repeatedly. Now, fourth comes your bipolar disorder, a disorder which is associated with episodes of mood swings ranging from depressive lows to manic highs. Then there comes the causes. What are the causes of this mental illness? Then first comes is your biological factors such as chemical imbalances in the brain. Second comes the impulsive actions when you act quickly without having a second thought about the consequences. Third comes the inherited traits, those traits which an offspring receives from their parents. Then comes your symptoms. What are the symptoms taking place? Like how you get to know, okay, this person is mentally ill. Then those are confused thinking. If you are a drug addict, suicidal thinking, changes in sleeping pattern, social anxiety, and feeling sad. These are few symptoms through which you can say, okay, this person might be mentally ill. But you cannot say very surely, like you cannot be 100% sure, okay, that person will be mentally ill. These are few of the symptoms which can be seen in a mentally ill person. Now, what are the treatments? What can be the treatments to deal with it? Now, first is you have to consult a mental health professional. आपको सबसे पहला काम जो करना है वो करना है कि आपको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करना है बिकॉज वो फर्स्ट हेल्प है लाइक यू नो वी हैव अ वर्ड वी यूज फर्स्ट एड जो हम कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है तो हम सबसे पहले किसकी तरफ पढ़ते हैं फर्स्ट एड की तरफ हॉस्पिटल जाने से पहले हमारा फर्स्ट चीज होता है फर्स्ट एड इन द सेम वे इफ यू आर मेंटली इल first of all your first aid is you have to consult a mental health professional because mental health professional को आप किसी भी और थिंग से या किसी और पर्सन से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं जो जो वैरायटी ऑफ हेल्प वो आपको प्रोवाइड करेगा वो और कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता देन सेकेंड कम्स योर मेडिटेशन मेडिटेशन आपको ऑलरेडी पता है कि इट हैज वेरियस you know benefits so if you are a mentally ill person meditation is going to help you a lot third thing is ask for help when needed you have to ask for help when it is required fourth goes take care of yourself you have to take care of yourself and last but not the least is psychotherapies there are few there are few therapies which will help you to deal with it because sometimes you know meditation never works you are not getting help when you talk to any other person even so that time the psychotherapy helps you okay next comes how to take care of our mental health that should be a question you know because मैंने आपको symptoms बता दिए मैंने आपको types बता दिए treatments मैंने कुछ कुछ जो basic treatments है that I have explained it to you but now it's time like वो कौन से measures हैं जो आप लेकर अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं या अगर आपको लगता है कि आप मेंटली इल हो रहे हैं तो आप उससे कैसे डील करेंगे सो फॉर दैट few basic things which I'm going to tell you is first of all you should have a understanding that it's okay to be not okay your feelings are valid and there is hope like you know अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको अच्छा ना लगे उसमें भी कोई इतने सोचने वाली बात नहीं है it should be okay for you if you are not okay and you know always there is always hope second comes seek therapy encourage yourself to pen up एंड सीक हेल्प बेसिकली आपको मैंने जो अभी तक जो ट्रीटमेंट में एक चीज एक्सप्लेन की थी कि आपको थेरेपी के लिए जाना चाहिए बिकॉज
इट इज़ वेरी इफेक्टिव और आपको अपने आप को इनकरेज करना चाहिए थेरेपी के लिए। एंड सेकेंडली क्या है कि आपको ये भी दिमाग में रखना है कि आपको कहीं पे भी अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने क्लोज वन से बात कीजिए। बात करने में कोई भी शर्म नहीं होना चाहिए, कोई भी हेजिटेशन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। एंड इट इज़ ओके टू सीक हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट। सो अगर आप एक थेरेपिस्ट के पास जाके हेल्प लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हैं या आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम्स है। इट जस्ट मीन्स कि आपको एक बीमारी है या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसके सोल्यूशन के लिए एक राइट पर्सन के पास जा रहे हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज प्रैक्टिस योर हॉबी ऑन अ रेगुलर बेसिस टू रिलैक्स योरसेल्फ। आपकी कोई एक पर्टिकुलर हॉबी होनी चाहिए जिससे आपका पूरे दिन में आप अपने आप को रिलैक्स कर सको, आप अपना पूरा माइंड डाइवर्ट कर सको इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में काम करके। देन यू हैव टू रियलाइज योर वर्थ एंड स्ट्रेंथ्स। आप क्या करते हैं, मोस्टली आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, वहां पे जाके बोलते हैं भैया आपने ये 500 का लगाया, प्लीज इसकी ना वर्थ 500 की जितनी नहीं है, आप इसे प्लीज हमें 200 में दो, मैं अभी के अभी ले लूंगा या ले लूंगी। तो आप ये चीज क्यों बोलते हो? बिकॉज यू नो द वर्थ ऑफ दैट आइटम। देन वाई कांट यू, like why you cannot understand the worth of yourself? You need to understand the worth of yourself, and also what are your strengths. Never look upon ki okay, I have this negativity, I can't do this as compared to others. But why you're not focusing on your strengths? Just focus on your strengths, and also know your worth. Then it, and you are very important, and that's the only thing which matters. You are important. Now you must be thinking कि आप किसके लिए important हो. So let me tell you, the first person या first people like जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा important हो is family. Okay, so they are the one who are very important for you, and you have, like, you should understand that you have a great importance. Like I'll just give you an example. आपने काफी बार एक वीडियो देखा होगा विच इज अ मोटिवेशनल वीडियो, जिसमें एक 200 का या फिर एक 500 का नोट आप ले लो। मैं उसे एक बार हाथ से क्रश करूंगी नोट को और नीचे गिरा दूंगी। इफ आई आस्क यू क्या इस 500 के रुपी का नोट का अभी कोई वर्थ है, यू विल से यस, I'm ready to take it. So the same way, if you keep on crushing it, जब तक वो फट नहीं जाता नोट, तब तक आप क्या करोगे, आपको उसका वर्थ लगेगा। इन द सेम वे आप भी प्रॉब्लम से निकलोगे। आप मतलब आप बहुत सारे वेरियस प्रॉब्लम से गुजरते हो अपनी लाइफ में, काफ़ी प्रेशर रहता है काम का, बिकॉज हर एक की कैटेगरी अलग है। कोई जॉब पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, लाइक बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिसके अंदर आपके साथ क्या है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे आपको डील करना पड़ता है। सो इन द सेम वे दे आर क्रशिंग यू, और आपको क्या करना है, अपना वर्थ को कम नहीं होने देना है। आपकी वर्थ जो है वो चलती रहेगी, ठीक है, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होगी। 500 के रुपये का नोट है, उसकी वर्थ कभी खत्म नहीं होगी। आप उसको अगर 10 साल बाद भी लाओगे, उसका कुछ ना कुछ वर्थ जरूर रहेगा। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ कि आप उसका वर्थ कितना मानते हो। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू आर इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट matters a lot. Now therapy, which I talked about earlier, therapy is going to help you to work on yourself from the root and accept yourself. Basically therapy में किया क्या जाता है? Everyone has that question. I know I am not a professional in therapy and all, but yes, I can tell you what they used to do. They are basically, what they will do is, वो उस रूट कॉज तक पहुंचेंगे कि आपको प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, आप किस चीज के वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या आपको प्रेशर माइंड में आ रहा है जो कि एक नेगेटिव स्ट्रेस से ज्यादा, मतलब नेगेटिव स्ट्रेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो दे विल गो टू द रूट, और उसके बाद वो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आपको उस रूट कॉज को हटाना है, और आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। एंड इट प्रोवाइड्स यू विद अ सेफ स्पेस टू वेंट आउट, एंड they are going to provide you a safe space where no one is going to judge you अगर आप कोई भी चीजें बताते हैं। Okay, next is approaching therapy is not an act of cowardness, it is a courageous step. पहली चीज, मैंने जो पहले भी एक चीज एक्सप्लेन की थी कि अगर आप थेरेपी के लिए जाते हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप एक कॉवर्ड पर्सन है, आप एक डरपोक इंसान है। इसका मतलब ये है कि आपने एक बहुत ही इफेक्टिव स्टेप उठाया है
और लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट किया है कि यस, if I have a problem, I can deal with it by consulting a therapist. So it is not a big deal. I'll just take you a very simple example. अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, लेट्स से मैं अगर एक बहुत छोटी सी बीमारी का नाम लूँ, जैसे कि फीवर. अगर आपको एक फीवर होता है, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी यूज टू डू, वी टेक पैरासिटामोल बिकॉज वी नो ओके पैरासिटामोल उस डिजीज को क्या कर देगी, किल कर देगी. बट लेट्स से आपको डेंगू हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप हॉस्पिटल जाओगे उस डॉक्टर के पास. सो इफ वहां पे आप एक डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करते हैं डेंगू के लिए, तो इस केस में अगर आप मेंटली इल हैं, तो ऐसा क्यों कि आप यहाँ पे थेरेपिस्ट के पास जाने में डर रहे हैं, लोगों की सोच रहे हैं या लोगों की सुन रहे हैं? वैलिड देखा जाए, इट इज नॉट अ वैलिड पॉइंट, राइट? सो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन जो मैं बेसिक पॉइंट्स पे फोकस करूंगी कि नो योर वर्थ. यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर इम्पोर्टेंट टू फ्यू पीपल लाइक योर फैमिली. पेरेंट्स के लिए आप जितने इंपॉर्टेंट हो उतने आप किसी भी पर्सन के लिए नहीं हो, उतना मैटर नहीं करोगे मे बी. बट येस, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर पेरेंट्स. गो एंड शेयर थिंग्स विद योर पेरेंट्स. सो यू आर इम्पॉर्टेंट. लेट्स से अगर आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, हो गया दोस्ती, यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड. एक ने अगर कुछ बोल दिया, सो यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. ओके, एक ने ये बोला है तो मेरे ऊपर एक स्टैंप लग गया. नो, everything depends on you. You should know your worth. You should understand that you are important to other people. So you should focus on those people who thinks ki yes, you are important to them. And finally, approach career therapy ke towards if you face anything. So now last thing what I'm going to tell you is, you have to take a good step. You have to take that effective step which is going to help others. Now ये जितनी भी मैंने चीजें बोली, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स या मैं बोलती हूँ बेसिक अप्रोच है अपने आप को मेंटली वेल बीइंग रखने के लिए. बट लेट्स से अगर आपके सराउंडिंग में आप देखते हैं कि कोई भी पर्सन is depressed or is not talking to you, और यू फील लाइक कि हाँ वो थोड़ा डिप्रेस्ड रहता है, बात नहीं करता है, कुछ ना कुछ उसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पे भी एक हेल्पिंग हैंड बन के उनके क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं. विच इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट, it is not going to impact you, but yes, maybe it can help the other person. So mental illness is not going to, I should say कि ये कभी भी हमारे आसपास से नहीं जाने वाले, ये हमेशा का एक चीज है जो रहेगी और जो अपनी रूट सिर्फ फैलाती जा रही है. और ये रूट्स निकालने के लिए हमें ही एक स्टेप लेना पड़ेगा. जब हम आगे आएंगे, एक स्टेप लेंगे, तभी कुछ हम कर पाएंगे इसके ऊपर. ओके ओके, so these were the few things. Let me just check if any step is left. Okay, next comes have adequate sleep. You have to take a good sleep for 7 to 8 hours या 6 to 7 hours. Because mostly people क्या बोलते हैं, लोग आजकल क्या बोलते हैं, अरे आपने 3 घंटे नींद ले ली, 4 घंटे नींद ले ली, इट्स इनफ, मोर देन इनफ. अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, आई वुड से no. If you are sleeping for 4 hours or 3 hours, it's not an adequate sleep. You have to take a good sleep which will आपको वो boost करता है next morning full energy के साथ to operate yourself. And take a day off for your mental well-being once a week. Exercise or meditate consistently. आपको क्या करना है, आपको अपने लिए, मैं ये नहीं बोलूंगी मेंटली हेल्थ बीइंग, मैं ये बोलूंगी आपको अपने लिए एक वीक में कम से कम एक दिन अपने लिए निकालना चाहिए, जब आप अपने ऊपर ध्यान दे पाए. आप पूरे वीक में एक दिन, अगर आप पूरा दिन नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट एक दिन में, पूरे वीक के एक दिन को आप चूज करिए जब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. फिर नेक्स्ट थिंग है रिड्यूस बेसलेस स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया. कनेक्ट योरसेल्फ विद योर लव्ड वंस, मीट न्यू पीपल. I have seen कि people are very much technology, savvy people. Like they love technology. Okay, I'm not against technology, but what I want to say is कि आपको सोशल मीडिया, जैसे हमारा क्या होता है, अगर हम खाना खा रहे हैं या हम कोई भी और चीज कर रहे हैं या घर पे काफी लोग आए हुए हैं, तो वी आर मोस्टली इन टू आवर मोबाइल्स. बट वाई, इफ पीपल आर अराउंड यू, देन यू शुड कनेक्ट पीपल ना. बिकॉज पहले क्या था, पहले का टाइम अगर मैं बोलूँ जस्ट 5 से 10 years बैक,
सेल फोन्स इतने नहीं थे, सो पीपल्स के लोगों के पास क्या ऑप्शन रहता था कि वो सॉरी, वो लोग क्या करते थे, आपस में डिस्कशंस चलते थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी डिस्कशंस होते थे, एंड एवरीवन यूज्ड टू टेक पार्टिसिपेट in those discussions. So you should also do the same. आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके साथ लोग बैठे हैं तो आपको कुछ टाइम के लिए सेल फोन साइड करिए, बिकॉज आप करेंगे क्या, अब मोस्टली फोन्स में क्या यूटिलाइज, आप फोन का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, इट डिपेंड्स. इफ यू आर यूजिंग इट फॉर समथिंग गुड, then it's fine. I won't say ki don't use your phones. But if you are on social media like Facebook, Instagram, and other things, then I must say ki don't waste much of your time on it. You have many other things to do. So use your time very wisely, and especially stop scrolling on social media, and connect yourself with your loved ones and meet new people to understand better about others. Okay, then comes mm, pamper and treat yourself with your favorite food or thing once in a week. Now, what I said before is कि आपको एक दिन वीक में अपने आप को देना चाहिए. इन द सेम वे आपको ये भी होना चाहिए कि आप इतना फिक्र करें कि आपको अपने आप को पैम्पर करना है, आपको अपने आप को एक स्पेशल फील कराना है कि ओके वीक में एक बार मैं अपने आप को बहुत कुछ अच्छा सा फेवरेट फूड या कुछ करता हूँ अपने लिए, जिससे you feel good, you feel happy just once in a week. If you can do it daily, then you are the happiest person on this earth. But if you can't do that, at least for once in a week, you can do that, and it is going to make you really very happy. I have already done this many times. Basically, I just do things on daily basis which makes me happy. If I'm not feeling good, I'll talk to friends. If I'm not feeling good, I'll watch movie or something else. But yes, you have to divert your mind. You don't have to think much on only one thing. Like suppose अगर आपके साथ कुछ हुआ, तो आप हर वक्त उसके पीछे मत जाओ, आप और चीजें भी कर सकते हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करके. अगर एक किसी इंसान ने आपको बोला कि नहीं, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड और एनीथिंग, अगर आप पे कुछ खामियां भी निकाली जाए, तो आप उस चीज को भी इग्नोर कीजिए, बिकॉज इग्नोरेंस इज द की to be mentally well being. Okay. Okay, thank you so much guys for giving your precious time, and I think you must have like learned few more things that how you can keep yourself mentally well. Okay, so I would like to ask you guys now, like how you feel, like was this point useful for you, and how, what is your take on mental illness, Manoj? Yeah, I mean, thanks for sharing all these details with us. Yeah. So basically, you told me that you told us about the meditation part, and one more thing I would like to add on this. So Sure. meditation plus yoga. Yeah. Yoga is very important thing nowadays. You can see so many people are doing it on a daily basis, and Yes. वजह से सो मैनी जो भी आपको बीमारियां या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप इससे रिकवर कर सकते हो Yes. क्विकली. Yes. तो एक पॉइंट मैं ये ऐड करूंगा इसमें योगा वाला Okay. प्लस मेडिटेशन. हाँ, मेडिटेशन वाला जो पार्ट है दैट Mm-hmm. दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. लाइक लोग भी इसको रेगुलरली कर सकते हैं ऑन अ डेली Okay. बेसिस. Mm-hmm. सो सजेस्ट कि रेगुलर बेसिस पे इसको अगर कोई करता है तो वो भी एक अच्छा मतलब उसकी पर्सनैलिटी में जो भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं या कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व कर सकता है थ्रू दैट. ओके ओके ओके, दैट्स वंडरफुल मनोज. एंड आपने सही कहा, योगा एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है हम सबकी लाइफ का, बिकॉज इससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस देखे भी गए हैं. एंड येस, ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू हेल्प दोज पीपल हु आर लिटरली जो मेंटली इल हैं, एंड ऑल्सो जो लोग हेल्दी भी हैं इवन, they are going to get a big help from this yoga, and they should regularly do it. Thank you so much. Vishali, are you there? Vishali? So I think she's not there. Yeah, that's fine. No issues.
Okay, thank you so much, guys, for coming and giving me a chance to explain a really very important topic with you guys. Because आप लोग देख ही रहे हैं आजकल के मेंटल इलनेस इज लाइक उसी के वजह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमारे अराउंड. सो वी कैन बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज पीपल who are facing this, and we can help them, and we can just tell them that you are very brave enough, you are brave enough to deal with it. Okay. Okay, thank you so much, guys, for this. Yeah, thank you. Yeah. Thanks.